And welcome to the SST classroom. This one is the third part of the video. Chapter number 2, People as a Resource, and it is being taken from the economics. Let's quickly recap what we started in previous video. Economic and non-economic activities, classification of economic activities, primary activity, secondary activity, tertiary activity. I hope that you all of had gone through the video and completed the written work also. Let's move forward. So basically there were three terms, three economic activities: primary, secondary and tertiary. These activities provides the income to a person individually and to the country as well. But we are talking about the human resource, people as a resource in this chapter. So how a person can gain good income, what are the aspects through which we have to focus, or government should focus on which qualities of human being, so that the human resource, the people of a country, can give the higher amount of income to themselves and to the country as well. If they will earn higher income, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, when a person earns a higher income, then only that person will be able to contribute in the national economy. कैसे कैसे हम contribute करते हैं? When we pay the taxes, even not only in the terms of money, in the terms of taxes and all, through various means, through various things, we use to develop our country. Only we are the people, we are the human, we people makes our country developed. कब बनेगी? When we are going to develop, जब हम develop होंगे तब हमारा देश एक developed country बनेगा, right? So what are the qualities for a human resource which should be there in a population? एक पूरे देश की जनता में हर इंसान के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सो दैट अ पर्सन कैन गेन हायर इनकम. Three qualities are there. It is divided into three category: education, or in other words we call it literacy also. Secondly, health, medical care, and the third thing is skill development or ट्रेनिंग ऑफ एनी ऑफ द स्किल. स्किल डेवलपमेंट होता है कि आपको किसी भी चीज़ में शौक है, इंटरेस्ट है, यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द थिंग, देन यू नीड टू शार्पन दैट. मीन्स अगर आपको लाइक यू आर गुड इन सिंगिंग, तो यू शुड टेक ट्रेनिंग इन सिंगिंग सो दैट योर स्किल कैन गेट डेवलप, अच्छे से डेवलप हो जाए और आप उसका यूज़ करके आगे अपनी लाइफ में एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, एक गुड रिसोर्स बने कंट्री के लिए. और आप अच्छी इनकम जनरेट करेंगे तो कंट्री के लिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा. this is the thing. So one by one we will study all the qualities of population, how it relate to the country, that we will also study. And if these are not there, तो उससे हमें प्रॉब्लम क्या होगी, दैट आई विल ऑल्सो टेल यू. तो वेरी फर्स्ट आई एम टेकिंग हेयर द एजुकेशन. what is education? The study you are studying, your parents are studied previously, and your friends in your friend circle, आपके आसपास बहुत सारे बच्चे हैं आपकी एज ग्रुप के, those who are taking the education. Education means when you are able to read, write, speak, understand and to generate new ideas, that is called the education. In our India there are different labels of education that I will be telling you. So education prepares the child for future life and instill in him those skills that will enable him to live a useful life and contribute to the development of society. Education makes us a good citizen. It provides us the higher income. So many things we got from the education only, right? What is literacy? Literacy हम किसे कहते हैं? When a person is able to listen, read, write
and speak any language. Any language. Why any languages here? I am talking about only India, I am not talking about the other countries, because in other countries it's not like that so many languages are there, because India is a huge country and so many cultures are over here. That is why we are having diversity in the languages too. तो देयर आर टोटल 22 मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया, और उन लैंग्वेजेस को देखते हुए यहाँ पे जो एक लिटरेसी लेवल है वो क्या सेट किया गया है, मीन्स लिटरेसी लेवल मीन्स कि टू होम वी कॉल अ लिटरेट पर्सन। मतलब आप किसी के कपड़े पहन के, किसी के स्टैंडर्ड से, किसी के बिहेवियर से ये थोड़ी कहेंगे कि दैट पर्सन इज़ अनएजुकेटेड, दैट पर्सन इज़ इलिटरेट। कैसे आप उसको जज करेंगे? हाउ गवर्नमेंट जज इट? तो देयर इज़ अ लेबल, देयर इज़ अ criteria set by the government. That criteria is that when a person is able to listen, read, write and speak any language. अब suppose you're in your state, your state the language is Hindi. So if you are able to read Hindi, to speak Hindi, to understand Hindi or to write Hindi, it means you are a literate person. समझे? Got it ना? तो this is called literate. How we calculate the literacy level? लिटरेसी लेवल हमारी कंट्री में बताया जाता है ना, दैट द विच स्टेट इज़ हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी लेवल, विच स्टेट इज हैविंग द लोएस्ट लिटरेसी लेवल. तो हाउ वी कैलकुलेट इट? we calculate it, the calculation of number of literate persons in an area is called literacy rate. Means if we talk about the UP, so in UP how many persons are able to read, write and speak Hindi? और द अनदर लैंग्वेजेस, हमारी दो लैंग्वेजेस जो हैं वो पैरेलल चलती हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? तो हिंदी एंड इंग्लिश, तो हु इज़ एबल टू रीड और डू ऑल दीज थिंग्स इन हिंदी और इंग्लिश, दैन दैट पर्सन विल कॉल्ड अ लिटरेट पर्सन. क्लियर? दिस इज़ द लिटरेसी. तो बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड द एजुकेशन. हाउ इट इज़ डिफरेंटेड? लिटरेसी मीन्स अगर हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो इट मीन्स दैट यू पीपल आर लिटरेट, मीन्स यू आर इन द 9th स्टैंडर्ड, you are even good in Hindi and English, you can read, write, speak, understand the both languages, it means you are a literate person. Then what is education? Education means when you take the higher education, you make yourself skilled in a particular स्टैंडर्ड इन अ पर्टिकुलर वे. आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आप उसको चूज़ करते हैं, अपने आप को टेम करते हैं, दैट इज़ द एजुकेशन. यू टुक द हायर एजुकेशन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, आप आगे तक जाते हैं. दैट इज़ दिस इज़ द डिफरेंस इन इंडिया, दैट हेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिटरेट. देखो इलिटरेसी भी बहुत है हमारी कंट्री में, बट वॉट इज़ द प्रॉब्लम ओवर हेयर इन द लिटरेट एंड एजुकेटेड? क्या लाइक सम ऑफ द students joined the education in 8th standard, 9th standard, 10th standard, they left. कोई भी रीज़न हो सकता है, छूट गई, छोड़ दी. what happened? that person is counted in the literacy ratio but his income is not good. why? क्योंकि उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं करा. तो till that literacy do not reach to the good educational level na, so till then we cannot gain any higher income or we cannot give the productivity to the country. Getting it? So at least in our country to call the educated person, at least minimum 12th is required, intermediate. But up to after 12th also there are not so many opportunities for the persons, those who can do the jobs and all things. Some are having the higher skills so they took the jobs, but some are not having, so they don't took. So at least 12th plus graduation, it is must. Graduation in any of the field, then you will called a educated person, right? Moving to next, what is the importance of education? Why we are taking it? So boring question for the students also. पता नहीं क्यों मम्मी पापा भेज देते हैं पढ़ने के लिए.
Why there is so pressure on us? Study, study, study. Right? What is the importance of education? 5 points I have given over here. Makes a better citizen. Education makes us a better citizen, a responsible person. It opens our mind and expand our horizons. ये हमारे दिमाग को अच्छा सोचने का मोटिव देता है. Education gives us the good ideas, new ideas, to generate our own ideas. It enables us to understand our duties as citizen and encourage us to follow them. As a citizen, एक देश का नागरिक होने के नाते, this education makes us aware about what are our duties and why we have to follow them. There is no denying the fact that an educational person is a better citizen. आप देख सकते हैं, if you can compare it with the person that who is a less educated or illiterate person, and with yourself, that who is more responsible as a citizen. कंट्री में कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, राइट? सेकेंडली, इंश्योर्स अ प्रोडक्टिव फ्यूचर. इट प्रोवाइड्स अस अ गुड फ्यूचर. क्यों पढ़ते हैं? द वेरी मेन मोटिव ऑफ द एजुकेशन इन आवर कंट्री इज़ दैट वी वॉन्ट टू अर्न मनी, वी वॉन्ट टू डू अ गुड जॉब, वी वॉन्ट अर्न इनकम, राइट? एंड फॉर दैट पर्पस ओनली we did our education. इसीलिए पढ़ते हैं, है ना? तो अच्छा भी है. It ensures, it gives the surety that in future we are going to get a good income. It will give us. This is the thing. Open new vistas. Open new vistas means it gives us the more brief areas of doing work in a. अब suppose you are uneducated and you have to search a work for you, कि आपको कुछ काम चाहिए, you have to earn money. तो what kind of work you can do? क्या कर सकते हैं आप? Think about yourself. Labor. Most of the people becomes the labor. Business. Secondly, if any of the person is having good family background, then definitely they can go through the business also. But many of the persons in our country is uneducated, poor and illiterate, and they don't have much broader area for working. They just have the work to do. Servants, laborers, peasants, farming, pottery, इस तरीके के काम करते हैं. I'm not saying these works are bad. No, these are not bad. These are also work, but the thing is, these works do not provide them higher income. अगर इन्हीं कामों से उनको हायर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाए तो उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे. एंड इफ़ दे स्टार्ट गेटिंग द हायर इनकम, देयर लाइफ गेट चेंज. तो आप भी सोचिए, तो एक एजुकेटेड पर्सन के पास में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? सो मैनी. यू कैन थिंक इन एनी ऑफ द एरियाज़, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर ले. एंड आफ्टर डूइंग द 12th एंड ग्रेजुएशन, मैनी ऑफ द पीपल कि क्या करें, वी आर नॉट. क्यों? आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप यही नहीं सेलेक्ट कर पाते कि हमें करना क्या है. दे डोंट हैव दोज अपॉर्चुनिटीज़. एंड illiterate person or uneducated person is not having those opportunities. They never thought about it कि हम इंजीनियर बन जाएंगे, कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, या हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, या हम टीचर बन सकते हैं. वाई? बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड. नेक्स्ट, स्प्रेड अवेयरनेस. एजुकेशन स्प्रेड्स अवेयरनेस. Very good thing about the education. And in a democratic country, every person must be aware about the things. Very important for us. Rules, regulations, law will work only when we people are aware about it. Why? In our country, still so many villages are there where people don't know their fundamental rights. Why? क्यों नहीं पता उन्हें?
They have not taken education. Nobody is there to who is going to tell them that this rule is there, and nobody can harm you. Still many kind of things are going on in the society, like ki, you cannot marry with the other person, or casteism is there, and so many different problems are there, and rich and poor discrimination, and तो इस तरीके से किसी को भी रोकना, किसी के भी राइट्स को वॉलेट करना, इट हैपन्स इन द विलेज एरियाज़. किसी के भी पर्सन के राइट, किसी पर्सन के राइट्स को वॉलेट कर लेते हैं, लाइक रिच पीपल वॉलेट्स दी राइट्स ऑफ द पुअर पर्सन. अब अगर हम लेबर की बात करें, फॉर सपोज इन इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइड, अ लेबर वर्किंग एंड द ओनर इज़ नॉट पेइंग द फुल चार्जेस टू देम, जो भी उनका फुल डे का अमाउंट बनता है, डेली वेजेस, वो उनको फुल पे नहीं कर रहा है. दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग. वाई? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर दैट देयर इज़ सच रूल इज़ ऑल्सो देयर, कि अगर आपको वो पूरी इनकम नहीं दे रहा तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करिए एंड यू विल बी गेटिंग द फुल वेजेस. तो दिस अवेयरनेस इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर. बेसिकली इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ राइट्स एंड सर्विसेज. What you are having, what you can achieve, that awareness is required a lot. Then helps in decision making. An educated person is able to take the good decisions. Even educated person can differentiate between the good and bad very नाइसली, मतलब बहुत आसानी से वो इस चीज़ के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है. एजुकेशन प्रोवाइड्स अस, बिकॉज थ्रू द एजुकेशन वी टुक सो मैनी लॉट ऑफ द थिंग्स, आइडियाज़. हमने हिस्ट्री पढ़ ली, मैथ्स पढ़ ली, साइंस पढ़ ली. अब यू नो वेरी वेल कि अगर हम इफ़ वी आर गोइंग टू डू एनी ऑफ द रॉन्ग डिसीजन, तो व्हाट विल हैपन. और कोई भी हम काम करने जा रहे हैं तो हमें उसमें कैसे डिफरेंशिएट करना है कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग फॉर अस. दैट एजुकेशन गिव्स अस दोज आइडियाज़. इसको सोचने की जो कैपेसिटी है वो हमें एजुकेशन से मिलती है. थ्रू द एजुकेशन वी केम टू नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर अस. तो it can leave us perplexed and often wondering as to what is the right choice. Education is significant because it enables us to take the right decision and prevent losses. और इससे क्या होता है, हमारा जो होने वाला लॉस होता है वो बच जाता है. तो थ्रू दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एजुकेशन कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. व्हाट इज़ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. अब हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, मतलब हाउ इट्स रनिंग, कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है, व्हाट आर द लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स. तो हेयर ऑन द स्क्रीन ऑल ऑफ यू मस्ट बी शोन दैट देयर आर द डिफरेंट लेवल्स. लाइक प्री प्राइमरी मीन्स छोटे बच्चे जो ABCD छोटा बड़ा पढ़ना सीखते हैं, 1 to 3. प्राइमरी एंड जूनियर स्कूल 1 to 5th और 1 to 8th क्लास तक के. सेकेंडरी एंड द सीनियर सेकेंडरी स्कूल विच आर यूजुअली ऑफ द 1st to 12th स्टैंडर्ड, 1st to 10th, और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं. आफ्टरवर्ड्स क्या है हमारे यहाँ, हायर एजुकेशन मीन्स यूनिवर्सिटी, जो कॉलेजेस वगैरह आप जाते हैं, दैट इज़ द हायर एजुकेशन. ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. और ये सभी जो एजुकेशंस हैं दे ऑल आर अवेलेबल इन प्राइवेट एंड इन द पब्लिक सेक्टर. मीन्स प्राइवेट सेक्टर्स में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, पब्लिक स्कूल मीन्स गवर्नमेंटल स्कूल्स और कॉलेजेस भी हैं. ऐसे करके हमारी कंट्री में का एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी चलता है. देन what steps taken by the government for the spread of education. What government is doing for the spread of education in our country, because this is one of the major aspect as a human resource. अगर आपको एक अच्छी human resource अपनी country की develop करनी है तो education is must for them. So for that government what is doing? तो what government is doing? तो government has given this authority to the private sector also, and they themselves are also running so many different institutions. In private sector same primary, secondary, senior secondary, all schools are there. Let's talk about the public sector, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी कम नॉलेज है.
लाइक इन प्राइवेट सेक्टर प्री प्राइमरी है छोटे बच्चों का, लाइक जिसमें वो केजी नर्सरी वाला जो हमारा प्ले वे वाला कंडीशन होता है. इन पब्लिक सेक्टर व्हाट डू वी कॉल्ड इट? आंगनवाड़ी. I think you must have not heard it previously, but in our country it is called Anganwadi. Earlier there were no such pre-primary education in our country because हमारे यहाँ पे सीधा फर्स्ट गवर्नमेंट में तो सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टडी स्टार्ट होती थी. एंड द स्टूडेंट्स विच यूज टू स्टडी इन द नर्सरी क्लास they were studying in the first standard. बट नाउ आफ्टर द मैनी ऑफ द थिंग्स, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेने के बाद लोगों ने काफ़ी सारा उसके लिए फ़ाइट करी, प्रोटेस्ट करा, तब जाके आंगनवाड़ी जो है वो स्टार्ट हुआ. दिस प्लान हैज़ बीन टोल्ड बाय द यूनिसेफ. ये प्लान जो है यूनिसेफ से आया था. when it comes to know that the students are not taking education, they are not taking interest, तो क्या पता चला कि फर्स्ट स्टैंडर्ड तक बच्चे की जो एज है वो ज़्यादा हो जाती है और उस एज तक वो नहीं पढ़ता है, इसीलिए उसके अंदर पढ़ाई के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं होता. तो दैट इज इंटरेस्ट इज़ नॉट creating in the students, so the government started the early education Anganwadi. It is a governmental plan. It is run in a home only. किसी के भी घर में इसको रन किया जा सकता है. बेसिकली these are for the village areas where the people are not able to reach out the schools. In this a person required his land only. बस उस पर्सन को अगर कोई भी अपने यहाँ पे आंगनवाड़ी चलाना चाहता है तो इन दिस ओनली द पर्सन हैज़ टू शो दैट ही इज़ हैविंग द लैंड, मतलब उसका खुद का पर्टिकुलर होम है और उसके पास इतना स्पेस है कि वो उसमें छोटे बच्चों को रख कर पढ़ा सकता है. दैट इज़ टू बी डन. एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द फूड एंड द बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स एंड no uniform is required, nothing is required in this. सिर्फ वहाँ पे and one teacher is also provided by the government, person रखता है, and one servant maid that is also there, वो भी होती है. तो और इसमें क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को, छोटी छोटी चीज़ें. दैट इज़ टू बी डन. देन सेकेंड लेवल इज़ द प्राइमरी और द जूनियर स्कूल. आप लोगों ने देखे होंगे गवर्नमेंटल स्कूल जो हैं, जो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि दे आर टिल द 8th स्टैंडर्ड. कुछ 1 to 5 के भी होते हैं एंड सम आर ऑफ द 1 to 8th ऑल्सो. तो दिस इज़ द प्राइमरी एंड जूनियर लेवल ऑफ द स्कूल. देन नेक्स्ट फॉर द 12th लेवल तक जो है स्टडी, हाउ दैट इज़ टू बी डन. तो नवोदय विद्यालय इज़ देयर इन द ईच district. Government has established the Navodaya Vidyalaya in the each district for the education of the senior secondary and secondary level from pre-primary, primary, junior, senior secondary, secondary. All this education label is there. Yeah, and in every district Navodaya is there. Even it is the residential school where the students can live. No need to go anywhere. They provide all the facilities over there. And the second one is the Kendriya Vidyalaya in every district. You are very well aware about it, KV. These all are available in the every district. So these are the steps taken by the government for the spread of education. More are there. आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई कैन नॉट टेक द ब्रेक बिकॉज अगर मैंने बीच में ब्रेक लिया तो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ होल मैनर ना. दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी डन इन अ सिंगल वीडियो. So steps taken for the government. What are the more steps taken by the government for it? Sarv Shiksha Abhiyan, RTE, right to education, 5-year plans, regular and distance education. I know, you people are getting bored, huh? Don't get bored. Sarv Shiksha Abhiyan. What is this? It is a significant step towards providing elementary education to all students in the age group of 6 to 14 years. ये एक प्लान है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है. दिस प्रोवाइड्स द एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स टिल द 8th स्टैंडर्ड, 1st to 8th स्टैंडर्ड फ्रॉम द दिस. तो सर्व शिक्षा अभियान प्रोवाइडेड मेक इट मैंडेटरी. और इसके लिए और इसमें क्या क्या है, मिड डे मील स्कीम इज़ देयर इन विच द स्टूडेंट्स नॉट हैव टू ब्रिंग द lunch boxes. The lunch is going to provide from the school side only. Food is provided free to the studying. Even the study material is also provided free over here. No fees, no food, मतलब nothing they have to pay in this school. The student just have to reach the school and study.
Government provides each and everything: uniform, books, food. What else is required? Everything they are giving, though the students are not going to school. It focus on the girls education also. ये गर्ल्स एजुकेशन पे भी फोकस करता है, दैट मोर गर्ल्स शुड बी रीच टू द स्कूल. तो सर्व शिक्षा अभियान इम्पॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट वन इज़ द राइट टू एजुकेशन. और क्या किया है गवर्नमेंट ने? RTE एक्ट बनाया है. राइट टू एजुकेशन, इट वॉज पासिस इन द 1 अप्रैल इन 2010. 2010 में ये रूल जो है वो बनाया गया था, एंड इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट. मतलब अब ये कभी भी चेंज नहीं होगा. देखो, एक्ट में और जो प्लान और स्कीम्स होती हैं ना, उसमें डिफरेंस होता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस? द प्लान्स और स्कीम्स केम ओनली फॉर द सेशन ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब जितने टाइम तक सरकार रहेगी उतने ही टाइम तक वो प्लान और स्कीम चलेगा, है ना. बट व्हेन इट बिकम्स अ एक्ट, कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इट मीन्स कितनी भी गवर्नमेंट आए, कोई भी जाए, वो रूल नहीं बदलेगा. दैट विल बी गो थ्रू. तो RTE इज़ अ एक्ट. सर्व शिक्षा अभियान इज़ ऑल्सो इट वॉज अ प्लान, बट नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड. अब लेट्स सी, अब तो आपकी न्यू स्टडी पॉलिसी आ रही है, देखते हैं उसमें क्या चेंजेस होंगे. विल talk about that also, but let's study first about it. Right to education, it provides free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 year as a fundamental right. इसमें डिफरेंट क्या है? ये भी एक 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों पे फोकस करता है, दैट दे मस्ट गो टू स्कूल टू टेक द एजुकेशन. बट नाउ it has in 2010 it has been added in the fundamental rights. Earlier there were only 6 fundamental rights, but now there are 7. Why? This act has been added as a fundamental right. Right to take education, right to elementary education. ये एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट है, इन विच इवन द पेरेंट्स कैन नॉट स्टॉप द चाइल्ड टू गो टू स्कूल. इट प्रोहिबिट्स, अब इसमें और भी कुछ रूल्स हैं. क्या क्या हैं? इट प्रोहिबिट्स मतलब किस चीज़ों के लिए ये मना करता है कि क्या नहीं कर सकते हैं. फिजिकल पनिशमेंट्स एंड मेंटल हेरेसमेंट शुड नॉट बी देयर. यू मस्ट हैव लिसन इट, हर्ड इट, दैट पनिशमेंट्स, कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, कोई हमें मार नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता. फ्रॉम वेयर दैट रूल हैज़ केम, इट इज़ फ्रॉम द RTE ओनली. ये RTE का बनाया हुआ रूल है, विच हैज़ टू बी फॉलोवर्ड इन द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एवरीवेयर. चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, दीज रूल्स हैज़ टू बी फॉलोवर्ड ना. तो प्रोहिबिट्स दी punishment and the mental harassment. Screening procedure for the admission of children, basically it is for the public schools. कि जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, मींस बच्चे से टेस्ट लेना, बच्चे का एग्ज़ाम कराना, ये जो है पब्लिक स्कूल्स में बिल्कुल नहीं होता है. वाई? क्योंकि स्टूडेंट्स हार्डली केम टू द पब्लिक स्कूल फॉर द स्टडी. और उसमें भी अगर आप उसका टेस्ट लोगे कि यू आर वेदर यू आर एबल टू स्टडी और नॉट, अगर वो इतना ही अच्छा होता उसके घर से पढ़ने का, तो उसको ज़रूरत ही क्या थी फिर आपके पास स्कूल में आने की ना. तो दैट इज़ वाई इन पब्लिक स्कूल दे डू नॉट टेक एनी ऑफ द टेस्ट और द स्टार्टिंग थिंग प्रोसीजर जो भी होता है, दैट हैज़ नॉट टू बी डन. सिर्फ स्कूल जाना है, नाम लिखवाना है, जस्ट स्टडी, इतना करना है. प्राइवेट ट्यूशन्स बाय द टीचर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. जो भी गवर्नमेंट के टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, दे कैन नॉट गिव द प्राइवेट ट्यूशन्स टू एनी वन. These are the rules of the RTE. So finally this video is over. I hope that this education label is clear to you. Everything, let's quickly recap it. मैं जल्दी से wind up करती हूँ कि what I told you the very first aspect of the quality of population. ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी का सबसे पहला एस्पेक्ट हमने पढ़ा है एजुकेशन. लिटरेसी, what is literacy rate, then importance of education I told you. what is the education system in India, किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन जो है वो चलती है, रन करती है. what steps taken by the government, किस तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं. अच्छा ओके, इसमें कुछ रह गया आपका 5-year plans and the regular and the distance education. Okay, 5-year plans is means whenever any of the government came, like suppose right now in Uttar Pradesh whose government is going on, BJP, Mr. Adityanath Yogi is the CM.
whatever plan or schemes his government has made for the education, that is going to run for the 5 years. ये हर 5 सालों में आता है, जिस किसी की भी गवर्नमेंट आएगी, मतलब दिस इज़ द रूल कि वेन एवर अ गवर्नमेंट केम देयर आर सच कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पर उन्हें वर्क करना ही है, उसके लिए उन्हें प्लान्स और स्कीम बनाने ही बनाने हैं। तो 5 ईयर प्लान्स केम इन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में जब भी गवर्नमेंट बदलेगी एक नया प्लान आएगा, और वो तभी पता चलता है जब गवर्नमेंट आती है कि उन्होंने क्या रूल बनाया है न्यू, दैट इज़ देयर। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, दे हैव टू टेक स्टेप फॉर दी स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज़ द रेगुलर एंड डिस्टेंस एजुकेशन। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू स्टडी, कि ये जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, ड्यू टू मैनी ऑफ द थिंग्स इट केम इन द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो दैट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स लैक देयर एजुकेशन ड्यू टू मैनी रीजन्स। कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो फॉर दैट पर्पस country, the government made the distance education. Distance education means in which you are not needed to go to school or the college, and though you can complete your study, फिर भी आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी एज टाइम में। देयर इज़ नो एज ग्रुप फॉर द एजुकेशन, टेकिंग एजुकेशन। तो रेगुलर स्टडी इज़ देयर, व्हाट यू आर डूइंग इन द schools, what usually people do, that every day we go to school and take the education in college and in university. But if any of the child, any of the person is not able to go to school or college, then there is the second method for them, that is the distance education. अब स्कूल लेवल पे डिस्टेंस एजुकेशन कौन कराता है? हु टुक? जो बोर्ड्स होते हैं कंट्री स्टेट के, और जो आपका सीबीएसई बोर्ड, ये जो आपका यूपी बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड है, ये आपके प्राइवेट एजुकेशंस भी कराते हैं। प्राइवेट एजुकेशन इन द सेंस यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट, और आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो हो जाएंगे, यू आर नॉट नीडेड टू गो टू स्कूल। और हु एल्स इज़ देयर? टिल 12th की बात कर रही हूँ मैं, टिल 12th क्लास, है ना। और कौन कराता है? एनआईओएस। एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये एक अलग से डिपार्टमेंट है जो कि सिर्फ क्या कराता है? डिस्टेंस एजुकेशन कराता है। तो एनी ऑफ द चाइल्ड हु इज़ नॉट एबल टू टेक रेगुलर एजुकेशन कैन गो फॉर द प्राइवेट स्टडी और फॉर द एनआईओएस, राइट। नेक्स्टली डिस्टेंस एजुकेशन इन हायर एजुकेशन मीन्स 12th के बाद में कौन कराता है? तो एवरी यूनिवर्सिटी इज़ हैविंग दिस फैसिलिटी। हर यूनिवर्सिटी में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी दैट देयर इज़ दी वन ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट एंड वन फॉर द प्राइवेट स्टूडेंट्स। आप दोनों जब फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म के टाइम पे ही आपको ये फिल करना होता है दैट वेदर यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट और अ प्राइवेट स्टूडेंट, बस दैट्स इनफ इज़ टू डू। एंड अगर हम एक स्पेशल यूनिवर्सिटी की बात करें कि जो सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन ही कराती है, तो हमारी कंट्री में ऐसी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं विद दोज हु आर वेरी फेमस। वन इज़ इग्नू एंड सेकेंड वन इज़ राजश्री टंडन, राइट। तो रेगुलर एंड डिस्टेंस एजुकेशन ऑल्सो क्लियर टू यू, एंड then I told you the Sarva Shiksha Abhiyan RTE Act, and now we'll study in the next video. This is enough for today. Thank you so much.